Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. So now in today lecture, we are going to see the extra algorithm. So that is going to find single source shortest path. So we have seen Prim's algorithm, just like we have seen some of the Prim's algorithm, and then Kruskal algorithm is spanning tree. But spanning tree is not going the single source shortest path from one source to other. It is giving the minimum cost spanning tree. It's tree which is connecting all the nodes, which is going to have a least weight. Okay, spanning tree is not going to give you single source shortest path. Am I clear? देखिए clear है क्या? स्पैनिंग ट्री आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे रहा। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एक सोर्स से आपको सब जगह जाना है, वहां से शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे मुझे कोलकाता से बैंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, तो कोलकाता से सब पार्ट का शॉर्टेस्ट पाथ मैं बताऊंगा। ठीक है। और ऐसे अगर आपको जैसे इंडिया घूमना है, तो देखिए दो प्रिम्स और क्रूस्कल क्या कर रहे थे। सो प्रिम्स और क्रूस्कल आर लाइक दिस, लाइक स्पैनिंग ट्री इज लाइक दिस, स्पैनिंग ट्री। So if you want to just like if you want to visit India to all the states of India, then you will see that by which path we can go, I should go, that which is going to cost a minimum cost. That is the spanning tree. You want to connect all the nodes with a minimum cost. But if you want from Kolkata, you want to go just like Pune, Bangalore, Hyderabad, then this is the shortest path from Hyderabad, from Kolkata to Hyderabad. What is going to be the shortest path? What is going to be this? That is going to be okay. That is called as, for that this is not given in spanning tree. Will not get it. Please let me know whether it is clear. देखिए समझ में आया कि नहीं। अगर आपको इंडिया में सब जगह सब स्टेट जाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो प्लान चूज करेंगे जिसमें आपको कम पैसा लगे। लेकिन अगर आपको, तो वो आपको स्पैनिंग ट्री देगा, इसलिए वो सारे नोड्स को कनेक्ट करता है और कॉस्ट कम रहता है। लेकिन आपको एक सोर्स से अगर कुछ कुछ स्टेट जाना है, जैसे वहां से आपको सारा कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ अगर कोलकाता से पुणे जाना हुआ, बैंगलोर जाना हुआ, हैदराबाद जाना हुआ, तो आपको क्या कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो आप ये यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज Dijkstra algorithm. Okay, so you can write minimum cost spanning tree, minimum cost, minimum cost spanning tree, minimum cost spanning tree is not going to, is not going to, is not going to give, is not going to give shortest, is not going to give shortest path, is not going to give shortest path between two nodes. दो नोड्स में ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगा। इट इज नॉट गोइंग टू गिव शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। ओके, सो फॉर दैट वी रिक्वायर डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसका नाम ही बोला है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। फ्रॉम सिंगल सोर्स यू आर गोइंग टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर नोड्स। तो अब हम देखिए, यहाँ पे हमें देखना रहेगा, देखिए, तो आप इसका लिख लीजिए। सो यू राइट हियर, in single source shortest path what we are going to do, in single source shortest path algorithm, इसको क्या कहते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ algorithm. So it is to it is to find the shortest path, it is to find the shortest path from one source, एक सोर्स से, from one source to all other nodes, from one source to all other nodes, from one source to all other nodes. So if you are done with the writing, you can let me know, then I will go to the next slide. Okay, now see, and relaxing an age. What is relaxing an age? It's a new term. We need to know what is relaxing an age, then we will go to the algorithm. Okay, then we will go to algorithm. Relaxing an age.
what is meant by relaxing an edge? See, if you are having a source S, okay, and you are going to vertex B, you are going to a vertex B, and you are going to vertex U, and if you are incurring मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी तो दे सकते थे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, नहीं देखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे रहा था दो नोड्स के बीच में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे मैं आपको बताया कि आपको जैसे ये सारे नोड्स को कनेक्ट करना है, सारे नोड्स को कनेक्ट करना है और ऐसे कनेक्ट करना है कि इसका कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये थोड़ी बोल रहा है कि यहाँ से अगर यहाँ जाना है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, तो आप इस तरह जा रहे हो। और ठीक है, अगर मैं, आप मान लो ये आपका ट्री है, आपका ट्री है ये इस तरह 10 20 30 40 और ये आपका 50 है, तो इसका अगर आप स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो आप ये कंसिडर करेंगे पहले 10 20 30 40। तो आपको इस नोड, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी ई, अगर आपको ए से ई के पास जाना रहेगा तो आप बोलोगे सर मैं इस तरह जाऊंगा, तो कॉस्ट कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ 30 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। लेकिन ये क्या मिनिमम कॉस्ट दे रहा है स्पैनिंग ट्री हमारा ए से ई के पे जाने के लिए? नहीं, क्योंकि हम ए से सॉरी, तो ए से ई के पास हम डायरेक्टली जा सकते हैं, तो 50 कॉस्ट लगेगा इसका। देखिए समझ में आ रहा है क्या हिमांशु, क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं? मिनिमम कॉस्ट तो आपको ए से अगर ई के पास जाना रहेगा तो वहां तो 50 लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो स्पैनिंग ट्री तो ये बनेगा, क्लियर? ठीक है, तो देखिए अब हम रिलैक्सिंग एन एज पढ़ेंगे, तो वी आर गोइंग टू सी रिलैक्सिंग एन एज। रिलैक्सिंग एन एज, रिलैक्सिंग एन एज मतलब क्या होता है? So it is like if you are having a source and if you are having a two vertices u and v, it is a source, it is your vertex v, it is your vertex u, okay, and if you want to go from here to this here and here to here you are going to. So distance, so let's assume distance of u from source to this is 20 and distance of v from source to v is your 10. Now there is an edge, by this if you'll go it will incur a cost. So d to u, u to v is a edge and it is going to incur 5. Okay. Now what is relaxing in edge means? Means if you from source, if you directly go to v, its cost is 10, and if you from source, if you directly go to u, its cost is 20, its cost is 20. But if you'll go, but if you'll go and u from S through UV, then it will cost incur 15. Why? Because S to V is your 10, then 10 plus 5 is your 15. It's a relaxing an edge, means you are using this edge, and by using this edge you are going to the node U. So you should not use this path, you should use the edge, by this edge you should go. Please let me know whether it is clear or not. So it is relaxing an edge, relaxing an edge, an edge VU, okay, because you can go to node U through node V then VU, okay, because if you'll go this path, if you'll go by this path, then it will be, it will incur 15. So relaxation edge means if d of V, that d of d means distance, if d of V, if distance of V, so if distance of U is greater than, if distance of U is greater than distance of V plus cost incurred by V and U, and distance of U is going to your distance of V plus cost of VU, and that is going to take constant time, only one summation, okay, that is going to take constant time. Now I think that it is done. I'm going to the next slide. If anyone is still writing, then they can comment W. Okay, W means wait, D for done. Okay, this is the code that we use in our class. Okay, now see, now we'll see the algorithm, how to steps. Okay, now स्पैनिंग ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, स्पैनिंग ट्री पढ़े थे, तो वो स्पैनिंग ट्री एक सोर्स से हमें सिंगल, जैसे ये अगर आपका ट्री रहेगा तो आपको ए से, अगर मैं बोलूंगा ये आपका ट्री, ये आपका ग्राफ दे दिया गया है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे, आपको ए से और ई के पास जाना है, उसका सिंगल सोर्स
शॉर्टेस्ट पाथ बताइए कि ए से ई के जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अब डायरेक्टली ए से ई के पास चले जाइए, कॉस्ट 50 हो जाएगा। सर स्पैनिंग ट्री भी तो दे सकता है, तो स्पैनिंग ट्री अगर बनाएंगे हम इसका, तो पहले हम इसको ऐड करेंगे 10 एज, एज किसका है 10 है, फिर 20, फिर 30, देन 40, इस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको तो ऐड नहीं करेंगे ना। तो अगर स्पैनिंग ट्री में अगर हम पता करेंगे, हाँ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो अगर स्पैनिंग ट्री से पता करेंगे तो ए से ई के पास जाने के लिए 100 रुपीज लग जाएगा, 100 कॉस्ट लगी है। लेकिन ये तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। सिंगल सोर्स मतलब सिंगल सोर्स नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये दे ही नहीं रहा है, ए से ई के पास जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम स्पैनिंग ट्री यहाँ यूज नहीं करते। स्पैनिंग ट्री हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देता है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज नॉट गोइंग टू गिव शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। वो देखिए, आपको जैसे इसको आप रियल टाइम कैसे देखेंगे, जैसे आपको पूरा इंडिया का टूर करना है तो आप यूज करेंगे स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, क्योंकि आपको इंडिया के सारे स्टेट्स को आप नोट समझ लीजिए, आपको सारे को कलेक्ट करना है, सारे को कलेक्ट करना है। तो आप वो पाथ यूज करेंगे जिससे मेरा कॉस्ट कम पड़े। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ये निकलते होंगे, क्या कहते हैं उसे, कुछ ट्रेन निकलते हैं जो टूर कराते हैं पूरा, तो वो हो गया स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग। लेकिन अगर आप, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं कोलकाता का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो कोलकाता से आपको जैसे सिर्फ पुणे जाना है या बैंगलोर जाना है या हैदराबाद हैदराबाद जाना है, तो ये सिंगल सोर्स है। सोर्स आपका कोलकाता ही है, कोलकाता से सिर्फ आपको पुणे जाना है, कोलकाता से ही आपको सिर्फ बैंगलोर जाना है, कोलकाता से सिर्फ आपको हैदराबाद जाना है। तो उसमें मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगा वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो वो स्पैनिंग ट्री ये नहीं दे पाएगा, ये तो बता रहा है कि सारे नोड पे जाने के लिए आपको मिनिमम कितना खर्च पड़ेगा, ये बता रहे हैं। ये बता दें कि एक स्टेट से आपको दूसरे स्टेट जाने के लिए मिनिमम क्या पड़ेगा। इसीलिए हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, मिनिमम, सॉरी, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए हम ये पढ़ते हैं क्योंकि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ये नहीं दे पाता। क्लियर है? तो उसके बाद हमने क्या देखे, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मतलब होता क्या है कि इट इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स टू अदर नोड। एक सोर्स से सारे अदर नोड्स का हमें शॉर्टेस्ट पाथ पता करना पड़ता है। अब देखते हैं, जैसे आपके पास रिलैक्सिंग एज रहता है जो हम यूज करेंगे। मतलब रिलैक्सिंग एज मतलब क्या, एज क्या हो गया, पाथ हो गया। आप एज से जब यू के पास जा रहे थे तो वो डिस्टेंस ले रहा था 20 रुपए, 20 रुपए उसके खर्च हो रहे थे। तो आप क्या किए कि सर देखिए सर, एज से अगर मैं बी के पास जा रहा हूं तो कॉस्ट 10 पड़ रहा है, अगर मैं फिर बी से यू चल जाऊंगा कॉस्ट 5, तो हमारा 15 हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस ये पाथ यूज करेंगे तो आपका कॉस्ट 15 हो जाएगा। देखिए, आप सोर्स से डायरेक्ट यू के पास नहीं जा रहे, आप सोर्स से डायरेक्ट अगर जाएंगे तो 20 रुपए आपकी लगेगी, खर्च होगी। तो आप क्या करें, सर मैं ये पाथ ले लूंगा, जैसे हम लोग करते नहीं, उबर में और ओला में हम शॉर्टेस्ट पाथ ले लेते हैं ताकि हमारा पेट्रोल का खर्च कम हो। तो ये सब हो गया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। हम क्या किए, सोर्स से भी के पास गए, यहां से फिर ये रास्ता ले लिए तो हमें 15 रुपए पड़ा। ये हो गया रिलैक्सिंग इन एज वी। तो रिलैक्सिंग एज क्या होता है, अगर डिस्टेंस ऑफ यू इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ वी प्लस cost of v and u, then distance of u is going to distance of v plus cost of v and u। तो distance of u क्या हो जाएगा, distance of v plus cost of v। इस तरह क्लियर है? बताइए, सबको क्लियर है ना? तो अब हम स्टेप्स देखेंगे। सबको क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए फटाफट। अब हम लोग पढ़ेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ डूइंग डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। सो मैं डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का, अच्छा यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको जो इंग्लिश ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये क्राउड पूरा हिंदी का है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ा दूंगा। क्या ऐसा है क्या? ऐसा एनीवन इज देयर हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश? तो ये स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। चलिए, मतलब कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं हिंदी में पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। तो जो लाइन, या चलिए तो हिंदी में पढ़ा देते हैं ताकि, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेइंग दैट, पहला स्टेप आपको क्या कह रहे हैं, मिक्सर, लेट लेट टेक लेट टेक एनी नोड, लेट टेक एनी नोड। ओके, तो यह पहला स्टेप है, लेट टेक एनी नोड, हियर ए एस, हियर ए इज टेकन। सो आप लेट्स टेक एनी नोड। ओके, आप कोई भी नोड लीजिए। ठीक है, लेट्स टेक एनी नोड एज ए सोर्स। आप एज ए सोर्स कोई भी एक नोड लीजिए, लेट्स टेक एनी नोड एज ए सोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, मतलब एक नोड से, जैसे कोलकाता से कोलकाता ही जा रहा है तो क्या कॉस्ट होगा, फ्रॉम कोलकाता तो कोलकाता इज गोइंग टू बी जीरो। तो फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू सोर्स इज गोइंग टू योर जीरो।
is going to your 0. ये पहला स्टेप है. This is the first step. First step is saying that let take any node as source. कोई भी नोड को सोर्स लीजिए. The distance from source to source is 0. So make it to 0. Okay. ये आपका स्टेप 1 आपको करना है पड़ेगा. Make rest of the node and make. इनिशियली पहला आपको यही करना है. अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा. ठीक है. कहीं पर भी किसी को डाउट हो आप प्लीज पूछ लीजिएगा. एंड मेक the rest of the node and make the rest of node from source is infinity and make the distance from source to rest of the node. अच्छा मैं यहाँ लिखा हूँ. And make distance of rest of the node. Make distance of the rest of the make distance of rest of the node. Make distance of rest of the node from source is infinity. देखिए मैं यहाँ क्या करना है आपको किसी एक नोड को आपके गेट एग्जाम में दे देंगे कि आप इसे सोर्स समझिए. तो आप उसे सोर्स समझ लेंगे. यू आर गोइंग टू कंसिडर सम नोड एज अ सोर्स. नाउ सोर्स टू सोर्स डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0 and from that node to all other node this from that particular source to all other node you have to consider that distance is infinity. पहले आपको क्या कंसीडर पड़ना होगा कि डिस्टेंस इंफिनिटी है. ठीक है. लिख लिए होंगे तो बोलिएगा. नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. नाउ स्टेप 2 among all the nodes pick the nodes. स्टेप 1 में आप क्या करती है सोर्स टू सोर्स 0 एंड रेस्ट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू रेस्ट ऑफ द नोड इज इंफिनिटी. नाउ स्टेप 2 is saying among all the nodes pick the node which is having the pick the node with minimum cost pick the node with minimum number or cost with minimum number is the cost. Okay, number is the cost that you will write. Okay, pick the and it's saying that among all the nodes pick the node with minimum number. Okay, after that and try to relax age. Okay, and try to relax all the outgoing age and try to relax all the outgoing nodes from the chosen node. So now the node which you have chosen, after that you are going to relax all the outgoing node. Okay, all the outgoing. Now step 3 is saying apply step 2 until all nodes get chosen. Means you have to choose all the nodes. Until that you have to apply step 2 until all the nodes get chosen. Okay, so you apply step 2 until all the nodes get chosen. And if any node is now give a note and write give a note and write if any node is chosen already. If any node is already chosen, you write if any node is already chosen, then don't consider it again. Okay, if any node is already chosen then don't consider it again. You act as it is deleted. Act it as deleted. Okay, so if any node is already chosen, then don't consider it again. Then you don't no need to consider it again. Act it as deleted. You act it as deleted. Okay.
So means whatever node you have chosen already, then don't consider it again. Okay, you have to act that it is deleted. Okay. So one more thing that you have to take care here, that if new node you have chosen, now from that node there is a outgoing edge to the already chosen node, then you are not going to relax that edge. Okay, means what I mean that if you are having an edge, if you have chosen that node, okay, and you already chosen that node, the source is having 0. Now there is an outgoing edge from here. Let's assume some value is b. You are having an outgoing edge node 2, value 2. Then you are not going to consider this node again. अगर आप इसे पहले समझ चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं इस नोड को, अगर आप पहले इस नोड को कंसिडर कर चुके हैं, अगर आप पहले ही इस नोड को कंसिडर कर चुके हैं, तो दोबारा आप इसे, अगर कोई और नया नोड है उससे अगर आप इस नोड पे आ रहे हैं, तो इससे रिलैक्स नहीं करेंगे, इसे आपको ऐड कर, जब भी आप किसी नोड को कंसिडर कर लिए आप समझिए कि वो उसका डिलीट होगी, एक्ट एज ए डिलीटेड, नो, you are again not going to relax that, again you are not going to relax the outgoing edges to the already chosen node. Okay, क्लियर है ना ये? तो नोट करके लिख दे लीजिए, ये सिंपल प्रोसेस है, हमेशा एक नोड को चूज करना, उसका जितने आउटगोइंग नोड है उसको रिलैक्स कीजिए, फिर दूसरा स्टेप में वो नोड को चूज कीजिए जिसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू उसका कम है, उसको चूज कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए सारे आउटगोइंग एज को। लेकिन कोई भी अगर पहले से चूज हो चुका है तो उसको फिर से रिलैक्स नहीं करना। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अगर डाउट होगा तब आप पूछ लीजिएगा, अभी भी पूछ सकते हैं। if there is any outgoing if there is any outgoing if there is any outgoing एज फ्रॉम चूजन नोड, so जो आप नोड चूज किए हैं उससे कोई आउटगोइंग एज है, if there is any outgoing edge from chosen node, then don't consider it again. Okay, then don't consider it again in computation, because if there is an outgoing edge from chosen node to already chosen node to already chosen node, that means deleted node, that is deleted node, okay, that is deleted node, then don't consider it again, consider don't consider it, you're not going to consider it, okay। देखिए एग्जांपल से सही समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? देखिए सबको क्लियर है क्या? एग्जांपल लेते हैं फिर गेट क्वेश्चन लेंगे, पहले एग्जांपल एक लेते हैं फिर गेट क्वेश्चन लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपका एक एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ए बी सी डी ई। विथ एग्जांपल इट विल बी मोर क्लियर। हैविंग ए 5 2, then here cost is 7 is 3, here is 2, here is 10, here is 1, then here is 9, then here is 4, then here is 6, then here is 6। ठीक है, तो मैंने सारा दे दिए, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या करेंगे, आप रुक जाइए, नाउ सी, ओके, सो यू स्टॉप राइटिंग, फर्स्ट सी। So I'm assuming A as the source. So step 1 is saying that let any node as a source. Now from source to source the distance is going to be 0, and to all other nodes the cost is going to be infinity. So A is your source, I'm assuming its cost is going to be 0, and all other nodes is going to be infinity. All other nodes is going to be your infinity. All other nodes is going to be infinity. Okay. So first we have chosen A. Then in step 2 it's saying that you choose the node which is having a list number. So A is having a list number 0, the distance list A you have chosen. Now you have to relax all the outgoing edge. अब आपको सारे outgoing edge relax करना है।
तो पहले ए को बी के पास जा रहे थे तो इन्फिनिटी कॉस्ट था, अब लेकिन ए के पास ये एज यूज करेंगे तो कॉस्ट 10 हो जाएगा। तो आप ये एज यूज करें तो ये यहाँ पर रिलैक्स कर, ये एज को यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। आउटगोइंग एज को रिलैक्स करना है, फिर ए को यहाँ 0+5 करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, 5। पहले इन्फिनिटी था, अब इस एज के थ्रू जाएंगे तो 5 हो जाएगा। सिर्फ आउटगोइंग एज को रिलैक्स करना है, आउटगोइंग एज को। तो यहाँ कॉस्ट क्या हो गया, 5, यहाँ कॉस्ट हो गया 5। ओके, सो नाउ यू हैव ऑलरेडी कंसिडर दिस नोट, यू आर नॉट गोइंग टू अगेन कंसिडर, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू अगेन कंसिडर इट। नाउ स्टेप 2 में क्या बोलते हैं, फिर स्टेप 3 क्या है, डू दी स्टेप 2 अंटिल यू हैव सेलेक्टेड ऑल दी नोट्स। तो इस नोट को तो सिलेक्ट कर लिए, अब फिर करना है, तो फिर अब स्मॉलेस्ट कौन सा है, किसका वैल्यू स्मॉलेस्ट है, सी का। तो आप ए के बाद अब सी चूज किए, 5 था, 5 से अब रिलैक्स करेंगे। पहले बी का वैल्यू ए के थ्रू जा रहे थे तो 10 हो रहा, लेकिन देखिए ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, सोर्स आपका ए है, सोर्स आपने माना यहाँ पे ए है, आपको क्या पता करना पड़ेगा कि आप ए से बी के पास जाएंगे, ए से जब बी के पास जाएंगे तो ए से क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ए को बी के पास जाना है, सी के पास जाना है, डी के पास जाना है और ए के पास जाना है, कॉस्ट कम लगे सबसे कम। तो पहले ए डायरेक्टली जा रहा था तो कॉस्ट 10 लगा, लेकिन अब वो बी के थ्रू जाएगा 5 फिर 3 8 लगेगा। ठीक है, तो ये रिलैक्स, इसे कहते हैं रिलैक्सिंग। ओके, तो हम रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर देंगे वो। तो उसके बाद आपने जो नोट सेलेक्ट किए जिसका वेट कम था तो आपने 5 सेलेक्ट किए, फिर +3 किए, आपको 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसका आउटगोइंग एज है, पहले इन्फिनिटी था, 5 + 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 + 2 करेंगे 5 + 2 7। ठीक है, तो ये आपके इसके आउटगोइंग एज कर लिए, तो अब ये दोनों आप समझिए कि डिलीट हो गया, इसका और इसका आपने कर लिए डिलीट। अब आपको क्या करना है, नोट इसमें से चूज करना है जिसका कम है, ओके, जिसका कॉस्ट कम है, तो इसका कम है, ई चूज की। अब ई से रिलैक्स करना है, ये ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऑर्डर क्या है। अब ई से देखिए, आप ये देखिए जो मैं एग्जांपल बता रहा था, 7 से फिर 7 आउटगोइंग एज है, देखिए सोर्स आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको इसे समझना है दैट इट इज ऑलरेडी डिलीटेड बिकॉज़ यू ऑलरेडी फाइंड इट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ए। इसका शॉर्टेस्ट पाथ आप पता कर लिए फ्रॉम ए टू सी, इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो चुका है, इसलिए आप चूज कर चुके हैं, तो ये आप नहीं करेंगे रिलैक्स। तो यहाँ पे रिलैक्स किए, 7 6 कितना हो गया 13, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13, यहाँ हो जाएगा आपका 13। ओके, यहाँ हो गया आपका 13, ये आप रिलैक्स कर दिए। तो आप अपने ई चूज कर लिए, अब आप कौन सा नोड यूज करेंगे, अब आपका ये कर लिया, अब आपको वो नोड यूज करना है जिसका वेट कम हो, तो बी का कम है, बी, तो बी, अब आप बी चूज करेंगे, अब बी के थ्रू 1 मिला, इसका एक, ये सब तो आप कर ही नहीं सकते, तो एक ही यहाँ पे होगा क्योंकि ये तो पहले से चूज कर चुके हैं। 8 + 1 is going to your 9, 8 + 1 is going to your 9। Is it clear to all of you? So first I have selected the node A, then C, then E, then B, then D. In this order, I found the shortest path from. So from shortest path A to C is your 5. This is the shortest path from A to C is your 5. A to E is your 7. A to B is your 8 by this path, and A to D is your by this path. This. This is the shortest path. Single source, shortest path. देखिए ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। बताइए किसी को डाउट, रिपीट कर देता हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए बिठा देते हैं, स्टेप 1 में आपको कहते हैं, जल्दी ही बता देंगे, ठीक है। देखिए और एक एग्जांपल लेंगे अभी हम, इसी तरह आपको पूछ लेना है, जब भी आपको समझ में नहीं आपको इसी तरह पूछ लेना है, जो डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगा, जो डाउट रहेगा। हाँ ये वाला एक्सप्लेन कर रहे, ये वाला एक्सप्लेन कर, वो भी और एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से ही चीजें अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। मैं तो एग्जांपल लूंगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आप एज्यूम कीजिए कि जो आप सोर्स है, तो सोर्स में एज्यूम कर लिया है, तो सोर्स टू सोर्स डिस्टेंस हो जाएगा 0 और सारे नोड्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसके बाद, इन्फिनिटी, सारे नोड्स का डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। हम नीचे लिख रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नोड्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर, ये क्या है, द ऑर्डर इन विच, द ऑर्डर
ये आपसे गेट में पूछते हैं किस ऑर्डर से आपने शॉर्टेस्ट पाथ पता की, पहला ए का, फिर सी किए, फिर ई किए, द ऑर्डर इन विच द शॉर्टेस्ट पाथ इज कंप्यूटेड, द शॉर्टेस्ट पाथ इज कंप्यूटेड। तो पहले आप कौन सा नोड चूज करेंगे, जिसका वेट, जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो, ठीक है। तो जैसे आप पहले स्टेप वन में कब करेंगे, सोर्स टू सोर्स डिस्टेंस 0 और बाकी नोड्स का इन्फिनिटी, ठीक है, बाकी नोड्स का इन्फिनिटी। नाउ अब क्या करना है आपको, स्टेप टू में क्या करना है, आप स्टेप भूल जाइए, वैसे ही देखिए, सोर्स टू सोर्स 0 कर दिया, बाकी नोड्स इन्फिनिटी, फिर चूज कीजिए वो नोड जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, जिसका कॉस्ट डिस्टेंस मिनिमम हो, ये जो अंदर जो वैल्यू है ना, यही डिस्टेंस है, मिनिमम कॉस्ट सोर्स से, सो ए से ए के जाने के लिए कॉस्ट 0 लगा। तो अब इस पूरे में से किसका वैल्यू सबसे कम है, ए का, तो आपने ए चूज किया था। तो ए से जो भी आउटगोइंग एज होगा, जो भी आउटगोइंग एज होगा उसको रिलैक्स कीजिए। ओके, मतलब ए को, अब ए को पहले बी के पास जा रहे थे, इन्फिनिटी लग रहा था, अब बी के पास जाएंगे बाय दिस एज, तो कितना लगेगा, 0 प्लस 10 10 लगेगा। तो अब यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। फिर 0 to 5 क्या हो जाएगा, 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। और यहाँ ये नोड अब आप कंसिडर नहीं करेंगे दोबारा, जब भी आप एक कंसिडर कर लिए तो दोबारा उसे कंसिडर नहीं करना, आपको समझना है कि वो डिलीट हो गया, ठीक है। आपने इसे कर लिए, अब आपको इसमें से वो नोड को दोबारा सेलेक्ट करना है जिसका वैल्यू सबसे कम है, कॉस्ट का वैल्यू कम है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ इंफिनिटी है, ये आपका क्या है, कॉस्ट है। सोर्स ए से सी पे पहुंचने में कॉस्ट है, तो वो सिलेक्ट करेंगे, तो सी का कम है, तो आप नेक्स्ट जो आप नोड सेलेक्ट किए सी, तो सी से जो आउटगोइंग एज रहेगा उसको रिलैक्स करेंगे, तो 5 से 2 करेंगे, 5 पहले यहाँ ए से सी के पास पहुंचा 5, फिर 5 प्लस 2 7, ई के पास पहुंचने के लिए आपको अब 7 लगेगा, कॉस्ट लगेगा, तो समझ जाइए कि आपको 7 रुपए लगेगा, 7 रुपए लगेगा, ठीक है, 7 रुपए लगेगा। क्लियर है। अब देखिए 5 2 अगर 3 करेंगे तो पहले 10 था, मतलब ए डायरेक्टली जा रहा था तो 10 लग रहा था, लेकिन अब बी के थ्रू जाएगा तो उसको 8 रुपीज लगेंगे, तो 5 प्लस 3 इज गोइंग टू 8। देखिए जो भी आउटगोइंग एज है, ये सब क्या आउटगोइंग एज है, तो आप उसको रिलैक्स कर दीजिए, अब 8 हो गया। कम हो रहा है तो आपको लिखना है, तो उसके बाद आपने सी सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें से सी अब दोबारा नहीं करेंगे, अब इन तीनों में से बी डी और ई से वो नोड को सिलेक्ट करें जिसका वैल्यू सबसे कम है। आप सेलेक्ट किसका करेंगे, ई को, ई को। अब ई से जो आउटगोइंग एज है उसको रिलैक्स करेंगे, देखिए यहाँ 7 7, ये बोला है कि ई से ए के पास जाएंगे तो 14 कॉस्ट लगेगा, 7 या 7, लेकिन ये तो पहले से ही डिलीटेड है, ये तो आप पहले से ही चूज कर चुके, जो चूज कर चुके उसको फिर से रिलैक्स नहीं करना है, उस नोट पे दोबारा नहीं जाना है, आपको एज्यूम करना है कि वो डिलीट हो चुका है, तो ये हम नहीं करेंगे। नाउ 7 से 6 डी के पास जा सकते हैं, 7 6 कितना हो गया, 30, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो मैं अब यहां से जाऊंगा, 13 हो गया, 13 हो गया। सो और कोई एज है नहीं है, और कोई नहीं है। अब फिर आपने क्या चूज कर लिया, ई चूज कर लिया, अब आपको बी और डी से चूज करना है, तो बी और डी में बी स्मॉलेस्ट है, बी चूज कर लिए, तो एक ही नोड बचा है जिसको आप रिलैक्स कर सकते हैं, वो है नोड डी। तो 8 को फिर 1 मिला कॉस्ट, ये डायरेक्ट मान लिया, तो इसको कॉस्ट बचेगा, पहले 13 था तो इसलिए वो 13 को रिलैक्स, 13 कॉस्ट तो ज्यादा है ना, इसलिए पहले कैसे जा रहा था डी के पास, ए पहले बी के पास जा रहे थे, फिर सी के पास, ए के पास, ए से सी के पास जा रहे थे, फिर सी से ई के पास, फिर ई के थ्रू जा रहे थे, तो उसको 13 रुपीज लग रहे थे। तो मैं उस तरह क्यों जाऊं, मैं यहां से चल जाऊं बी से, फिर 1 बी के पास पहुंच रहा है, 8 रुपये लग रहा है, फिर 1 रुपया और लगेगा तो 9 रुपया लग जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब रियल टाइम यूज है, इसी तरह आपको यूज करना है। देखिए मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं, जब भी हैदराबाद या हैदराबाद से कॉस्ट जो रहता है, जैसे दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता आने के लिए प्राइस देखिए ज्यादा रहता है, फ्लाइट का कॉस्ट ज्यादा रहता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग भुवनेश्वर उतरते हैं, भुवनेश्वर उतर के फिर वहां से ट्रेन ले लेते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट कम हो गया, आपको यहाँ पहुंचना है, कोलकाता पे पहुंचना है, तो आप हैदराबाद से आ गए, हैदराबाद के थ्रू आ रहे जैसे, ठीक है। तो 8 प्लस 1 9 हो गया, ये सबका रियल टाइम यूज बहुत है, ठीक है, ये 9 हो गया। क्लियर है सभी को। आप तो अब लास्ट में तो एक ही नोट बचा, हो गया डी। क्लियर है। तो अब गेट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज योर गेट क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज मुझे लग रहा है आप लोगों ने क्लास मेरा शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, स्ट्रेंथ आज अच्छी है क्लास की, तो थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग दी लिंक। इसी तरह आप लोग शेयर किया करते रहिए,
ठीक है, ताकि मोर स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सके। ये आपका गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ दिस ग्राफ इज गिवन, ये सारा मैं एजेस लिख दिया हूँ क्या, ये एक एज बच गया था, 1 2 1 2। तो इफ दिस is the graph given, if this is the graph given, क्वेश्चन बोल दिए हैं आपको, लेट p, तो मैं नाम दे देता हूं यहाँ p, इसका नाम है t, इसका नाम है q, इसका नाम है r, इसका नाम है s एंड इसका नाम है u। लेट p एज सोर्स, आपको सोर्स समझना है, सोर्स फॉर Dijkstra एल्गोरिथम। Dijkstra, what is the order, what is the order in which the shortest path, in which the shortest path to other nodes is computed, यहाँ computed है, ठीक है, is computed। so what is the order in which, जैसे पहले हम उसमें ऑर्डर क्या किए थे, पहले हमने इसमें ये पूछ रहा है, ए किए फिर सी किए, तो यहाँ बोल दिया गया है कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सॉरी सोर्स क्या है आपका, पी है, सोर्स आपका पी है, ओके। देखिए तो आप इसको 0 कर देंगे ना, 0 से सारे नोड को क्या कर देंगे, इन्फिनिटी। पहला स्टेप आपका यही है। तो आपको ऑर्डर पूछ रहे हैं यहाँ पे गेट में कि किस ऑर्डर से आपने यहाँ पे आपने शॉर्टेस्ट पाथ पता की, पहले आपने पी चूज कर ली, ठीक है, फिर पी के बाद क्या है, मतलब पी तो पहले ही होगा, पी के बाद क्या होगा, ये रिलैक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, सारे आउटगोइंग एज को हम रिलैक्स कर देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 7, बिकॉज 0 + 7 is 7। अब इसको ये समझ लेंगे कि डिलीट हो गया। अब इसमें से जितने बचे हैं, इस 5 में से हम चूज करेंगे उस नोड को जिसका कॉस्ट कम है, तो क्यू कब करेंगे, 1 हो गया। अच्छा मधुरा बोल रहे हैं वी विल ट्राई, वेट, ओके ठीक है, ट्राई कीजिए, PQRUST, या करेक्ट सम्राट, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, 2 नंबर का है ये, इट्स कैरी 2 मार्क्स, आप लोग देखिए कर पा रहे हैं। ठीक है, सो कुछ लोगों ने कर लिए, देखिए आप देख लेते हैं, ठीक है। तो क्यू को आप सिलेक्ट करेंगे, तो क्यू को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके आउटगोइंग एजेस रिलैक्स करेंगे, 1 + 1 2 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये 2 हो गया, और ये 5 हो जाएगा, इसलिए पहले 6 था, अब आप इसे कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और कोई तो आउट ही नहीं था। अब आप चूज करेंगे जिसका वेट, तो ये और ये आपने चूज कर चुके, इसमें से किसका वेट कम है, आर का कम है, तो आपने आर चूज कर दिया, अब जो आउटगोइंग एज है उसको रिलैक्स करना है, तो यहाँ पे 2 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 + 2 2 + 1 3 हो जाएगा, अब इन दोनों को करना है, इन दोनों को
तो 2 + 2 क्या हो गया आपका, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, अब आप चूज करेंगे इन तीनों में से, इसका कम है तो यू को चूज करेंगे, यू चूज हो गया। अब देखिए यू का कोई आउटगोइंग एज है ही नहीं है, यू का कोई आउटगोइंग एज नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब इनकमिंग है, कोई आउटगोइंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर आप चूज करेंगे जिसका कम है, एस, एस से इधर एक ही पे जाना है तो 7 ही है तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहीं पे होगा, टी के पास पहुंच। जो यहाँ पे आपके रहते हैं ना नंबर, वो 0 1 2 3 4, यही हो गया शॉर्टेस्ट जो कॉस्ट लग रहा है सोर्स से, मतलब पी से अगर क्यू जाना है तो आपको 1 रुपया लगेगा, पी से अगर आर के पास जाना है तो 2 रुपया लगेगा, पी से अगर यू के पास जाना है तो 3 रुपया लगेगा। ये पाथ है, ये पाथ, ये पाथ हम पता किए। फिर हम इसके बाद हम यहाँ पे ये पाथ, ओके, तो इसके पास जाना है तो हम इस तरह जा रहे हैं, इस तरह, फिर या फिर डायरेक्ट इस तरह या फिर इस तरह। देखिए तो पी को टी के पास जाने के लिए दो पाथ मिल रहा है, या फिर पी से टी डायरेक्ट चल जाइए या फिर इस तरह घूम के जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सिंगल सोर्स हमारा पी था, उससे हम सारे शॉर्टेस्ट पाथ हम पता कर लिए। चलिए सब कोई का सही है, वेरी गुड। तो देखिए अब हम इसका एक चीज आप लिख लीजिए, सो ये लिख लीजिए, सो जो बीच में जो सर्किल में रहेगा, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन व्हाटएवर, ये लिखना जरूरी है, व्हाटएवर नंबर, व्हाटएवर नंबर is remaining, whatever number is remaining, whatever number is remaining in this circle, in this circle is the length of the, is the length of the, length of the shortest path, shortest path, shortest path from from source to, from source to each destination, from source to each destination। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। देखिए एक चीज और है, हम डिक्स्टा एल्गोरिदम नेगेटिव एज साइकिल में हम अप्लाई नहीं करते। एक चीज है जो मैं अभी तक आपको बताया नहीं, वो क्या है, डिक्स्टा एल्गोरिदम को आप नेगेटिव एज साइकिल में, नेगेटिव एज के लिए आप यूज कर सकते हैं डिक्स्टा एल्गोरिदम, लेकिन अगर कहीं पे नेगेटिव एज साइकिल है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, वी कांट अप्लाई डिक्स्ट्रा, ओके, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम in a graph, in a graph which is having, which is having, which is having negative, which is having negative age, is having negative age cycle। इसका नेगेटिव एज साइकिल रहेगा, नेगेटिव एज साइकिल, नेगेटिव एज नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव एज नहीं। देखिए मैं बताता हूँ नेगेटिव एज और नेगेटिव एज साइकिल में डिफरेंस। इन ए ग्राफ इन विच, इन ए ग्राफ विच इज हैविंग नेगेटिव एज, पहले लिख लीजिए फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, नहीं रियल टाइम एग्जांपल नहीं है, रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम में हम ज्यादातर हम डिक्स्ट्रा ही यूज करते हैं। रियल टाइम क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए आपको कभी नेगेटिव कॉस्ट थोड़ी लगता है। रियल टाइम में कोलकाता से बैंगलोर जाना है तो कुछ तो पैसे लगेंगे ना, नेगेटिव एज कैसे लगेगा। अगर नेगेटिव एज साइकिल होता है तो इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज, हाँ करेक्ट करेक्ट बस। देखिए वो मैं ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कब एप्लीकेबल है कब एप्लीकेबल नहीं है। पहले इंप्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है, तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम ना लिख के सिर्फ डिक्स्ट्रा लिखते हैं। अब देखिए इसको क्या क्या लगेगा, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ लगेंगे हमें, वेट मैट्रिक्स लगेंगे पता करने के लिए वहां से कितना। एस क्या है, एस है यहाँ पे आपका सेट ऑफ वेर्टिसेस हुज शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलरेडी कंप्यूटेड, आप लिख लीजिए। जी क्या है आपका, देखिए जी इज ए, जी इज द ग्राफ, जी आपका ग्राफ है। डब्ल्यू इज दी, डब्ल्यू इज दी वेटेड मैट्रिक्स, डब्ल्यू इज दी वेटेड मैट्रिक्स, ये आपका वेटेड मैट्रिक्स है। एस है, एस इज दी, एस इज दी सेट ऑफ, एस इज दी सेट ऑफ
all vertices, set of all vertices, set of all vertices whose shortest path, whose shortest path, whose shortest path is already, whose shortest path is already decided. ठीक है, जिसका शॉर्टेस्ट पाथ हम ऑलरेडी डिसाइड कर दिए वो हम एस में डाल देते हैं। एस क्या है? एक सेट। ठीक है, यहाँ एस एक सेट है। पहला क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, सोर्स को जीरो करते हैं, बाकी सबको इन्फिनिटी करते हैं। पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। पहले इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो वो ग्राफ रहेगा और ये सोर्स रहेगा, ये सोर्स। ठीक है, कोई भी सोर्स रहेगा, आप किसी को भी सोर्स समझिए, पहले आप इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, आपको एस को आप जो एस जो सेट है आप उसको एम्प्टी रखिए। पहले आप किसी को इस सेट में कोई भी चूज नहीं हुआ। ठीक है, अब तीसरा क्या, आप मीन हिप से इसे इंप्लीमेंट कीजिए, जैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं मीन हिप से। ओके, मीन हिप से तो आप एक क्यू ले लीजिए, क्यू क्यू ये क्या है, एक मीन हिप है, जी डॉट वर्टेक्स। सो हम बिल्ड हिप बना रहे हैं, बिल्ड मीन हिप लिख लीजिए, मीन हिप, बिल्ड मीन हिप। सो एक मीन हिप बनाए, क्यों मीन हिप बनाए, क्योंकि हमेशा मिनिमम हम लेते हैं, हमेशा नोड का वो वैल्यू लेते हैं जो मिनिमम है। ओके, वो वैल्यू लेते हैं जो मिनिमम। प्रायोरिटी क्यू ही तो हीप होता है, प्रायोरिटी क्यू ही तो हीप। दूसरा नंबर, जब भी प्रायोरिटी क्यू दिमाग में आए ना, हीप समझिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्ट मीन हीप। हमने बिल्ड हीप मीन हीप बनाया। देखिए लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, दूसरे स्लाइड में जाना है। अब देखिए आप करते क्या, आप हमेशा मिनिमम चूज करते हैं, आप हमेशा मिनिमम चूज करते हैं। लिख लिए होंगे तो डन कर दीजिएगा सब कोई। चलिए सबको डन कर दिए, वेरी गुड। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल, जब तक मीन हीप एम्प्टी नहीं है, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू क्यू हो, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू 5, जब तक वो एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिनिमम एक्सट्रैक्ट मीन, किससे, क्यू से, क्यू से एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो मतलब हम वो नोड मिल गया जिसका मिनिमम वैल्यू, पहले हम वही कर रहे थे। फिर उसको हम सेट में डाल दिए ऑर्डर में, एस इक्वल टू एस यूनियन यू, उस नोड को डाल दिया। अब उससे जितने भी एजेस थे, हाँ, और उससे जितने भी एजेस थे, जो भी आउटगोइंग एजेस थे, सबको हम रिलैक्स कर रहे थे। सो फॉर ईच वर्टेक्स v belongs to graph dot adjacent of u। तो जितने u के एडजेसेंट रहेंगे वर्टेक्स, उसको हम रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे, रिलैक्स u v एंड वेट मैट्रिक्स रहेगा, उससे हम रिलैक्स करेंगे। हमेशा वो चूज करेंगे नोड जिसका वैल्यू मिनिमम है, फिर उसको सेट में डाल दें कि इसका हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इसका हो गया भाई, सेलेक्ट कर लिया, किसी सोर्स का जीरो है पहले कर लिया। अब जितने भी फॉर ईच वर्टेक्स v which is adjacent to u, जो इसके एडजेसेंट है वही उसका आउटगोइंग है, सबको रिलैक्स कर दिया, सबको रिलैक्स कर दिया। यू भी क्लियर है कि नहीं, ये लूप चलता जाएगा। फिर दूसरा नोड आएगा जिसका वेट कम है, उसको चूज करेंगे, फिर मिन उसको रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरा मिनिमम, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरा मिनिमम, फिर रिलैक्स करेंगे। जैसे ही नोड खत्म, काम खत्म। हमें सारा नोड को ही चूज करना था। देखिए क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ओके सर। चलिए अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम पता करते हैं। देखिए जब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, जब हम इसका इनिशियलाइजेशन करेंगे ग्राफ और सोर्स का, तो कितना टाइम लगेगा बताइए, इनिशियलाइजेशन में कितना टाइम लगेगा, वी टाइम, जितने वर्टिसेस है उतना लगेगा। फिर सारे वर्टिसेस पे जाएंगे, जीरो और इन्फिनिटी, जीरो इन्फिनिटी करेंगे इनिशियलाइजेशन, ये कांस्टेंट टाइम। मीन हीप बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है वी। ठीक है, अब
अब ये लूप वी टाइम्स चलेगा, वी टाइम्स चलेगा, जितने वर्टिसेस है वी टाइम्स चलेंगे। एक्सट्रैक्ट मीन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, हमने देखे थे हिप में, लॉग वी। ओके, लॉग वी है। अब यहाँ पे हर देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हर एज को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स का टाइम रहता है आपको कितना टाइम लगता है बताइए, रिलैक्स का टाइम कितना लगता है, लॉग वी। लॉग वी आपका लगेगा रिलैक्सिंग का टाइम। तो आप सारे एज को रिलैक्स करें, सारे एज को देखिए, यहाँ पे भी आपको एग्रीगेट देखना है, एग्रीगेट देखना, आप एज जितने एज है आप उसको रिलैक्स कर रहे थे, जो आउटगोइंग एज था, जो आउटगोइंग एज था, सारे एज को आप रिलैक्स कर रहे, तो ये कितना टाइम चलेगा, ये टाइम्स चलेगा, ये टाइम्स चलेगा। ठीक है, इसका एक हर रिलैक्सिंग का मतलब, रिलैक्सिंग क्या है, डिक्रीज की, रिलैक्सिंग क्या है, डिक्रीज की के लिए हमें कितना टाइम लगता था हिप में, लॉग वी। डिलीट करने के लिए कितना टाइम लगता था, लॉग वी। इसलिए हम लोग हिप पढ़ते हैं। और हम एग्रीगेट टाइप देखेंगे, जैसे हम लोग इससे पहले भी एग्रीगेट एनालिसिस किए थे, एग्रीगेट देखेंगे तो ये ई नंबर ऑफ टाइम्स ये चलेगा, ई नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। तो ये कितना नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको देखिए, आपको इनिशियलाइजेशन के लिए लगा, आपको इनिशियलाइजेशन के लिए लगा आपको लॉग वी, मीन हिप के लिए लगा बिल्ड करने के लिए लॉग वी, एक्सट्रैक्ट मीन के लिए आपको लगेगा, एक्सट्रैक्ट मीन के लिए आपको लगेगा वी इंटू लॉग वी। और रिलैक्स करने के लिए इसके लिए आपको कितना लगेगा, ई इंटू लॉग, क्योंकि अब जितना भी आपके पास एज है आप सबको रिलैक्स करें, जितना एज है आप सबको रिलैक्स करें, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो लीडिंग टर्म हमारा ई रहता है कि ई इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए लीडिंग टर्म हमारा क्या होगा, ई लॉग। देखिए, क्लियर है तो बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, कहीं कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताइए, मैं बता दूंगा। तो आप लिख लीजिए रिलैक्सिंग, क्यों यहाँ पे ई टाइम्स हो रहा है, देखिए रिलैक्सिंग इज हैपन फॉर एवरी एज, हैपन फॉर एवरी एवरी एज, एवरी एज। ओके, वंस इन दी, एटलीस्ट लिख लीजिए, एटलीस्ट। ठीक है, चलिए सबको ये क्लियर है, देखिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपने देख लिया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सर फॉर लूप को तो डिपेंड होना हाउ मेनी एडजेसेंट एजेस इट हैज, हाउ लॉग वी। देखिए एडजेसेंट नहीं, रिलैक्स करें, रिलैक्सिंग मतलब क्या होता है, रिलैक्सिंग मतलब हो गया डिक्रीज की, रिलैक्स मतलब क्या हो गया, आप तो उसको डिक्रीज कर रहे हो ना, रिलैक्सिंग इज इक्वल टू डिक्रीज की, डिक्रीज की। तो जब की को डिक्रीज करते हो तो हीप में आपने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगा, लॉग वी, लॉग वी लगा। देखिए आपने हीप पढ़े, हीप में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा लॉग वी। तो आप हर एज को एटलीस्ट एक बार ले रहे हो रिलैक्सिंग करने के लिए, यहाँ पे तो ये जब v टाइम्स चल रहा है, लेकिन हर हर एज को आप बार बार चेक नहीं कर रहे, क्योंकि आप नोट तो डिलीट भी कर दे रहे हो ना। जब इसे डिलीट कर देंगे, जब आप इसे डिलीट कर देंगे तो ये सब एज को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इस और इस एज को तो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे तो आप देखिए हर एज को आप कंसिडर कर रहे हो, एज के वजह से रिलैक्स हो रहा है, हम लोग रिलैक्स किसकी कर रहे हैं, एज को कर रहे हैं, रिलैक्सिंग एन एज। देखिए तो जितना एज रहेगा उतना ही ना रिलैक्स होगा, रिलैक्सिंग एन एज। हम एज को रिलैक्स कर रहे हैं, इस एज के वजह से ये हुआ, तो हम यहाँ एज को रिलैक्स कर रहे हैं, नोट को नहीं, नोट में डिक्रीज की हो जाता है। ठीक है, रिलैक्सिंग की वजह से डिक्रीज की हो जाता है, तो हम सारी एजेस को कंसिडर करें, इसको भी की एटलीस्ट एक बार तो सारी एज को हम कंसिडर करते ही करते हैं। तो इसीलिए वो ई टाइम्स हो गया, ई इंटू लॉग वी। आप सारी एज को तो कंसिडर कर रहे हैं ना, हमेशा, हमेशा तो आप एज को कंसिडर कर रहे हैं, एज के वजह से ये रिलैक्सिंग हो रहा है कि इस पाथ, इस एज के से जाएंगे तो कम पैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे इधर गए 1 रुपया लगा, यहाँ 4 रुपया लगा, ऐसे जाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन आप इधर से जाएंगे तो आप एज के थ्रू जा रहे हैं, एज की वजह से रिलैक्स हो रहा है। तो आप एग्रीगेट देखेंगे तो एज के थ्रू हो रहा है, वो कितना बार आप रिलैक्सिंग करेंगे, कम से कम ई नंबर ऑफ टाइम्स, ये आपका हो जाएगा ई लॉग। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइएगा। चलिए अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता कर लेते हैं।
मुझे लग रहा है क्लियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताइए अब क्या होगा, सोचिए इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सोचिए इसी तरह, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्स्ट्रा आपको क्या रिक्वायर हो रहा है यहाँ? तो आपको यहाँ पे, हाँ देखिए, हीप बनाएंगे तो हीप बनाएंगे तो आपका लगेगा लॉग वी, स्पेस आप देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो सेट एस एक एरे लगेगा, सर कंप्लीट ग्राफ का एग्जांपल, अच्छा अभी मैं कंप्लीट ग्राफ का तो एग्जांपल नहीं बनाया हूँ, उसका भी करेंगे, ठीक है उसका भी करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आपको किसके लिए टाइम स्पेस लग जाएगा, आपको जितने वर्टिसेस है, आपको यहाँ पे सेट जो आपको स्टोर करना पड़ जाएगा उसके लिए आपको लग जाएगा लॉग वी, ठीक है। क्योंकि बिल्ड हिप करेंगे, बिल्ड हिप करेंगे तो उसके लिए लॉग वी लगेगा, स्पेस तो इतना ही लगता है ना, ये स्पेस बिल्ड के लिए। फिर सारा को स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे, सारे वर्टिसेस को किस ऑर्डर में सिलेक्ट हुआ है उसके लिए वी, ओके। एक्सट्रैक्ट के लिए भी लॉग भी लग जाता है, डिक्रीज के लिए भी लॉग भी लगता है, तो हमेशा लॉग भी होगा। लेकिन ये वी किस लिए होगा, वी किस लिए होगा, फॉर स्टोरिंग ऑल दी वी वर्टिसेस, ऑल दी वी वर्टिसेस किस ऑर्डर में आप कर रहे हैं। ये जो एस के लिए था, एस जो आप यूज कर रहे थे एस यूनियन, उसके लिए ये बिग ऑफ वी हो जाएगा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वी हो जाएगा। क्लियर है ना। बिल्ड के लिए वी, या फिर एक्सट्रैक्ट मीन के लिए, फिर डिक्रीज की के लिए भी, सबके लिए आपको लॉग वी ही लग रहा था, डिक्रीज की के लिए भी। तो लेकिन वी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि एसिम्प्टोटिक वाइज तो ये बड़ा है ना, एसिम्प्टोटिक वाइज ये ज्यादा है, तो बिग ऑफ वी स्पेस कॉम्प्लेक्स। ये क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। एवरीवन प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ पे हमने इस तरह किए। अब हम इनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या करेंगे, इनडायरेक्टेड ग्राफ में हम क्या करेंगे, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं है, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ we relax, we relax all we relax all edges incident to incident to incident to vertices, incident to vertices, but in directed graph relax only, relax only outgoing edge। देखिए, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ वी रिलैक्स ऑल द एजेस इंसिडेंट टू वर्टिसेस, तो हम रिलैक्स करते सारे एजेस को जो इंसिडेंट है वर्टिसेस पे, अनडायरेक्टेड, जो सारे जो भी इंसिडेंट होगा सबको रिलैक्स करें। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में क्या करते थे, जो आउटगोइंग एज रहेगा सिर्फ उसको करें, ठीक है। तो सारा इंसिडेंट को करेंगे अनडायरेक्टेड। क्लियर है। बताइए क्लियर है कि नहीं। अब हम देखिए, अब वो देखते हैं कंडीशन जहाँ पे नेगेटिव वेट एज रहेगा और नेगेटिव वेट एज साइकिल रहेगा, कहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, कहाँ पे आप डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को अप्लाई नहीं कर सकते, अब वो देखेंगे। नेगेटिव वेट एज एंड नेगेटिव वेट साइकिल, ये देखेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। एग्जांपल है आपका सोर्स आपका एस, यहाँ ए एक है, यहाँ एक टू है, बी, यहाँ डी है। इसका है -1, इसका है एज 2, इसका है 1। तो आप सोर्स इसे कंसिडर कर रहे हैं किसे,
देखिए आप किसे कंसिडर कर रहे हैं सोर्स, इसको, इसको, तो इसका डिस्टेंस हो गया आपको 0, सारा आउटगोइंग एज ये है, 1 हो गया इसका, 1 से 2 हो गया इसका 3, फिर 3 से 1 हो गया। यहाँ देखिए आप पता कर पा रहे हैं, नेगेटिव एज है, आप पता कर पा रहे हैं। देखिए नेगेटिव एज है, आपने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कर लिया, तो ए एस को जब डी के पास जाने लगेगा तो कॉस्ट इसको 2 लगेगा, 2 लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब कहाँ पता नहीं कर पाएंगे वो देखिए। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एस इस तरह है, ए है, बी है, डी है। एस हो गया ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। तो एस से ए गया 1, ए से बी गया 2, फिर बी से डी गया 3, फिर बी से ए गया -3। ठीक है, तो यहाँ 0 था, 0 से 0 + 1 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। अब इसका आउटगोइंग एज क्या हो गया ये, तो ये नोड देखिए आप अब इसे दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखिए आप बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एस से ए का 1 है, लेकिन आप एस से ए फिर बी से अगर ए के पास जाएंगे तो कॉस्ट कितना 3 - 3 0 हो जाएगा, फिर ए से बी का क्या हो जाएगा 0 + 2, फिर यहाँ -3 करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसका शॉर्टेस्ट पाथ पता ही नहीं कर पाए। आप बोलेंगे कि 0 शॉर्टेस्ट पाथ है, तो फिर बोलेंगे सर मैं 2 बार लूप ले लेता हूँ। यहाँ यहाँ क्या हो गया 2 2 - 2 -1, फिर -1 + 2 कितना हो गया 1, फिर 1 -3 क्या हो गया -2, फिर -1 ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, इसीलिए हम नेगेटिव एज जब रहता है तो आप शॉर्टेस्ट पाथ पता ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भी आप नेगेटिव एज रहेगा तब शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कर पाएंगे। देखिए कब कब हम नहीं कर पाते हैं शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, हम कब कब नहीं बता पाते, जब वो ग्राफ डिसजॉइंट है। ओके, जब वो ग्राफ डिसजॉइंट है, देखिए आप लिख लीजिए कंडीशन कंडीशंस वेयर कंडीशन वेयर बाय यूजिंग एनी एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम, बाय यूजिंग एनी एल्गोरिथम, बाय यूजिंग एनी एल्गोरिथम, using any algorithm, we are not able to we are not able to we're not able to find we're not able to find shortest path, we're not able to find shortest path are given below, given below। तो पहला आपका क्या है, अगर डिसजॉइंट ग्राफ रहा, ग्राफ ही अगर डिसजॉइंट है तब कैसे पता करोगे, नहीं कर पाओगे। इस और डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड ग्राफ और डिसजॉइंट ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ। और दूसरा है अगर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव वेट साइकिल हो, अगर नेगेटिव वेट साइकिल हो, ठीक है, तो ये याद रखना, अगर नेगेटिव वेट साइकिल होगा और डिस्कनेक्टेड ग्राफ रहेगा तो आप इसका नहीं बना पाएंगे, तो आपको ये नहीं मिलेगा, आप इसका शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वेट साइकिल जहां भी मिलेगा आप नहीं कर पाएंगे। देखिए क्लियर है कि नहीं, तो नेगेटिव वेट साइकिल के लिए डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम नहीं दे पाएगा, लेकिन नेगेटिव एज के लिए दे पाएंगे, नेगेटिव एज के लिए दे पाएंगे। अब नेगेटिव एज के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिएगा, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इजी एल्गोरिथम है, ठीक है, उतना डिफिकल्टी नहीं है इसमें। क्लियर है क्या सभी को? सो एग्जांपल है आपका दूसरा, देखिए तो पहले आपको देखना रहेगा कोई भी ग्राफ में शुरू करने से पहले कि उसमें नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं, अगर है तो आप नहीं कर सकते, अगर है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, जहां नेगेटिव एज साइकिल रहा आप नहीं बना पाओगे। सो ए बी, sir what if there is a negative cycle in the graph but the vertex is not visited? नहीं, नेगेटिव एज साइकिल जब भी रहेगा आप नहीं कर पाओगे। देखिए नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तो साइकिल मैं बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल, अगर साइकिल रहेगा ये तो साइकिल है ना, आप पहुंचोगे, आप सोच रहे होगे सर कि इस तरह आउटगोइंग दे दे तो वो तो साइकिल नहीं रहेगा। देखिए मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, देखिए यहाँ नेगेटिव एज है लेकिन साइकिल नहीं होगा। देखिए 2 -3, डिस्कनेक्टेड होगा तो भी आप नहीं कर सकते, डिस्कनेक्टेड भी होगा, देखिए डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा तो भी आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट, अब कनेक्ट ही नहीं है
कनेक्ट ही नहीं हो सकते तो कैसे बनाएंगे? तो सिंगल सोर्स हॉटस्पॉट आप नहीं पता कर, तो डिस्कनेक्टेड भी होगा तो भी आप नहीं कर। तो ये दोनों चीज आपको देखना है अप्लाई करने से पहले। ए बी सी डी, ए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई मान लेते हैं, इसे एफ मान लेते हैं, इसे जी और इसे एच। ठीक है, आपको पहले आप इसे किसे सोर्स मान रहे हैं, यहाँ पे ए को मान रहे हैं सोर्स, ए सोर्स है आपका, तो बाकी सब क्या हो गया इन्फिनिटी, बाकी सब हो गया आपका इन्फिनिटी। सो इनिशियलाइज कर दिए। अब देखिए क्या यहाँ पे नेगेटिव, पहले ही देख लेना चाहिए था हमें, क्या यहाँ नेगेटिव एज साइकिल है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव 8 है, लेकिन साइकिल है क्या, ये साइकिल बन रहा है, नहीं नहीं बन रहा। यहाँ 2 5 फिर इधर नहीं हो रहा, ये इधर देखिए, यहाँ साइकिल नहीं है, यहाँ नेगेटिव एज है लेकिन साइकिल नहीं है, तो मतलब साइकिल रहेगा तभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कनेक्टेड भी है आपस से, कनेक्टेड है तो इसका बन जाएगा। तो अब जीरो से, अब आप जीरो से जाएंगे, अब जीरो से जाएंगे तो ये सोर्स है, तो यहाँ आप रिलैक्स कर दीजिए इसके आउटगोइंग एजेस, रिलैक्स कर दीजिए। ये क्या था, ये यहाँ पे, इसका यहाँ पे था। ठीक है, सो यहाँ हो गया -3, ये हो गया 2 कर दिए। तो पहले आप क्या चूज किए, पहले आप ए चूज किए, ए चूज हो गया, रिलैक्स कर दिए, यहाँ 2 हो गया, -3 हो गया। फिर आप कौन सा नोड चूज करेंगे जिसका वेट कम हो, मिनिमम हो, तो आप क्या चूज करेंगे, ई चूज करेंगे। तो आप ई चूज किए। अब इसके आउटगोइंग एजेस क्या है, ये है, एक ही एज है, तो यहाँ क्या हो गया, -3 + 2 -1, ये हो गया आपका -1। अब -1 इन्फिनिटी 2 और ये सब बाकी सब में चूज करेंगे जिसका वेट, जिसका मिनिमम नंबर है, तो ये हो गया एफ, एफ चूज किए हैं अब आप। अब रिलैक्स करेंगे सारे आउटगोइंग एजेस, तो यहाँ हो गया आपका, रिलैक्स का एक्सट्रैक्ट मीन क्या होता है, आई एम कंफ्यूज। रिलैक्स का एक्सट्रैक्ट मीनिंग, अच्छा रिलैक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आई एम कंफ्यूज। देखिए रिलैक्स मतलब आपका होता है कि आप जैसे ये, आप यहाँ स्टार्टिंग ए से आप यहाँ पे गए, पहले जैसे यहाँ देखिए, पहले आप सोर्स आपका ए था, ए से आप जब जी के पास जा रहे थे तो इन्फिनिटी कॉस्ट था, लेकिन अगर आप ए को, ये सोर्स है, सोर्स आपका ए है, ठीक है, सोर्स आपको गेट एग्जाम में दिया रहेगा कि सोर्स, तो सोर्स आपका ए है। तो जब ए से अब जब आपको आपको जब जी के पास जाना रहेगा, ए से अगर आपको जी के पास जाना रहेगा, ए से अगर आपको जी के पास जाना रहेगा तो आप कैसे जाएंगे, ए इधर गए, इधर गए, तो यहाँ -1 से अगर 3 करेंगे तो मतलब ये, अगर ये एज अगर आप यूज करेंगे, ये एज अगर आप यूज करेंगे तो -1 पहले कॉस्ट था, -1 + 3 2 कॉस्ट लगेगा, तो +2 लगेगा। तो मतलब इसको जो आप कंसिडर कर रहे हैं ना, इस एज को कंसिडर करके आप ए के थ्रू जी के पास जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिलैक्सिंग एन एज। ओके, रिलैक्सिंग एन एज। ओके, क्लियर है? तो ये -1 3 क्या हो गया, 2 हो गया। आप इसे जो कंसिडर कर रहे हो, इसके जितने आउटगोइंग एजेस को आप कंसिडर करके देख रहे हो कि क्या इससे शॉर्टेस्ट पाथ हम पहुंच सकते हैं, उसको कहते हैं रिलैक्सिंग एज। ये एक टर्म है आपका। ठीक है, तो आप इफ इफ कंसिडर कर लिया, अब उसका जो भी आपका है इसमें से, आप देखिए जी और बी है, कोई भी कंसिडर कीजिए। किसी एक ने पूछे थे कि जब सर किसी दो नोट का वैल्यू सेम हो जाएगा तो किसी किसी एक को भी कंसिडर कर लीजिए, तो मैं जी को कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ जी को कर, आप किसी इसको या इसको किसी भी कंसिडर कीजिए कि दोनों का वैल्यू 2 है। अब इसके जो आउटगोइंग एजेस है उसको रिलैक्स कीजिए। देखिए यहाँ एक आउटगोइंग एज है 3, इसके पास जा रहा था, इसे आप पहले ही चूज कर चुके थे, ई को देखिए, ये इसको आप चूज कर चुके हैं, तो आप दोबारा इसे कंसिडर नहीं करेंगे, आपको समझना है कि वो डिलीट हो चुका है, इसको आप दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो गया 2 + 2 18, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए
सो और तो कोई आउटगोइंग नहीं। अब इसमें बचा हुआ है, इसमें कौन सा, अब आप बी को कंसिडर करेंगे, अब आप बी को पकड़ेंगे, जो नोड का वैल्यू का अब बी को पकड़े। अब जो आउटगोइंग एज है, अगर देखिए इसका एक आउटगोइंग एज है, बी से -5 करेंगे तो -3 होगा। पहले वैल्यू 4 था, पहले वैल्यू 4 था, आप माइनस कर दीजिए, पहले वैल्यू 4 था, माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अच्छा वो भी इरेज हो गया, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए -3 हो गया। अब और कोई है इसके आउटगोइंग, हाँ ये भी है 2, ये भी है, इसे भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। क्लियर, तो आप इसे भी कर लिए, बी को भी कंसिडर। अब आप किस में कौन बचा, एच और सी, तो आप किसको कंसिडर करेंगे, एच को, एच को कंसिडर, क्योंकि -3 है। फिर एच के बाद आप किसको कंसिडर करेंगे, सी की डी को, सी को कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका कम है। देखिए इससे तो इससे आउटगोइंग एज यहाँ पे इसे आप करेंगे ही नहीं क्योंकि पहले से हो चुका है, और कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो आप कुछ नहीं करने वाले। एज पे देखिए, एज पे आप कोई भी एज को रिलैक्स नहीं करेंगे, इसका आउटगोइंग एज को, क्योंकि पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए हम इसलिए टिक मार दे रहे हैं, तो अब इसे भी कर लिया। अब आप सी को कंसिडर करेंगे, फिर सी से एक ही एज बचा है, इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो गया, फिर ये इस ऑर्डर में आप सेलेक्ट किए, ए ई एफ जी बी एच सी डी, ठीक है। तो एक 0 हो गया, बी आपका क्या हो गया, बी के पहुंचने के लिए बी कहाँ है, बी कहाँ है 2, फिर सी हो गया आपका 5, सी हो गया 5, डी हो गया 7, 7, ई हो गया -3, एफ हो गया -1, जी हो गया 2, एंड एच हो गया -3, एच हो गया माइनस, एच कहाँ है, एच एच। तो अगर आपको ए से एच के पास जाना है तो कॉस्ट लगेगा -3, ए से ई के पास जाएगा तो कॉस्ट लगेगा -3, ए से अगर एफ के पास जाना है तो कॉस्ट लगेगा -1। ये हो गया सिंगल सोर्स, सोर्स है ए, सिंगल सोर्स से अगर बाकी नोड्स, दूसरे नोड्स पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मैंने इसके नोड में लिख दिया है, इसके बीच में। ये हो गया इसका आंसर, और इस ऑर्डर वे से आपने पता किए बाय यूजिंग डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये अप्लाई क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एज था, नेगेटिव एज साइकिल नहीं था, ठीक है, नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तभी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सभी को, बताइए, कमेंट कीजिएगा, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, प्लीज कमेंट whether it is clear or not। चलिए क्लियर है, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, तो आपका डिक्स्ट्रा कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिए। किसी को कोई डाउट रहेगा तो कभी हेजिटेट नहीं करना है, पूछ लेना है। तो डिक्स्ट्रा खत्म हो गया, 2 -3, तो सोर्स आपका मैं मान लेता हूँ ए है, सोर्स आपका मान लेते हैं हम ए है, ये 0, 0 से 1 1, 1 से 2 3, तो 3 से इधर क्या हो गया, तो इस ग्राफ में हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेगेटिव एज साइकिल है, नेगेटिव एज साइकिल है। इन दिस ग्राफ, वहां क्या था, साइकिल नहीं था, इसलिए बना दिए। इन दिस ग्राफ डिक्स्ट्रा इज फेल्ड, डिक्स्ट्रा इज फेल्ड, is failed to find, is failed to find shortest path, okay, failed to find shortest। क्लियर है, यहां आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिकॉज इट इज हैविंग ए नेगेटिव एज साइकिल, साइकिल में रहेगा तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज हैविंग ए नेगेटिव एज साइकिल, because it is having a, because it is having a negative, because it is having a negative age cycle। क्लियर, सभी को क्लियर है, देखिए डिक्स्ट्रा क्लियर है सभी को, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्लियर है सभी को, बताइए किसी को कहीं पे डाउट है तो बता दीजिएगा। सो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कोड भी कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिए, डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो कैसे करना है, अनडायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देखे।